भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या SC/ST एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135वी जयंती भारत भवन 1 च्या सभागृहात साजरी करण्यात आली. विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, शीलवान, धैर्यवान, तेजवान, विवेकवान, दयावान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, हिंदू कोड बिल के समर्थक, भारत के प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान, होनहार, ईमानदार लीडर, शोधकर्ता, समानता के हिमायती, बुद्ध के अनुयायी, इंसानियत के सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय के मालिक, 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, राजतंत्र के कट्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मैं अमित नाना सामंत, सीनियर मैनेजर BPCL एवं सेक्रेटरी ऑल इंडिया BPC SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, और मैं सुनेत्रा विनय मोरे, सीनियर मैनेजर ऑप्स रिटेल एवं मेंबर BPC SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन वेस्टर्न रीजन, नमन और वंदन करते हैं. कार्यक्रम में आगे हम एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी का मिक्स प्रयोग करेंगे. ऑनरेबल चीफ गेस्ट संजय खन्ना सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर BPCL, गेस्ट्स ऑफ ऑनर शुभांकर सेन सर, डायरेक्टर मार्केटिंग BPCL with additional charge of director HR, Pushpa Kumar Nair sir, executive director corporate HR BPCL and director HR designate, honorable keynote speaker Padma Shri Kalpana Saroj ma'am, Indian businesswoman, entrepreneur, TEDx speaker and chairperson of Kamani Tubes India Limited, dignitaries and all my dear friends. A very good afternoon to all of you. और सभी को हमारा जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. Thank you. It is wonderful to see so many faces gathered here, bringing the energy and spirit of every corner of our mother India. Your presence today is a testament to the vibrant diversity that defines us. Today, we are celebrating the 135th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, respectfully and lovingly known as Baba Saheb. The ideologies of Baba Saheb are well known and acknowledged worldwide. One of his famous quotes, which always motivates me to follow in his footsteps and excel in life, is, "Humans are mortal, so are the ideas. An idea needs propagation as much as plant need watering. Otherwise, both will wither and die." This quote fits apt for the noble cause for which we all have gathered here, not only to celebrate the birth anniversary, but to provide propagation, direction, channelize, and nurture the ideas which Baba Saheb has given to the entire world. Before going ahead with the main event, I would like to touch upon the life of our inspiration and idol, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb was born on 14th April 1891 in Mhow, Madhya Pradesh. The town was renamed in his honor as Dr. Ambedkar Nagar in 2003. He was a key figure in Indian history who faced immense social discrimination as a Dalit, which is formerly known as untouchables, in this caste-based society. He overcame hardship to achieve academic success and degrees from London School of Economics, Columbia University, and University of Bombay. Baba Saheb put up a valiant fight against inequality and caste-based prejudice. As the chairman of drafting committee of Indian Constitution, he played a pivotal role in ensuring social justice, equality, and fundamental rights of all the citizens. His vision extended beyond caste to include the rights of women and labor. His contributions led to the inclusion of provisions prohibiting untouchability and caste-based discrimination. His advocacy for socio-economic empowerment and education of marginalized communities extended far beyond politics. Dr. Baba Saheb Ambedkar left beyond a profound legacy as a social reformer, economist, and jurist, one that continues to inspire movements for social justice and equality across the world. On 31st March 1990, Dr. Baba Saheb Ambedkar was posthumously conferred the Bharat Ratna,
India's highest civilian award, in recognition of his immense contribution to social justice and nation building. He passed away on 6 December 1956, leaving behind an extraordinary legacy. Though he is no longer with us, his ideas continue to shape social reforms and policy making in India and beyond. His passing marked the end of an era of relentless struggles for right and empowerment of marginalized communities, including women. Even today, his thoughts and teaching inspire movements for justice, equality, and upliftment of underprivileged across the world. Today, we feel truly fortunate to have been given this golden opportunity to stand before you and represent Baba Sahib. I often wonder if I were given a chance to go back in time, I would love to witness Baba Sahib's era, to join him in his struggles, or at least have a privilege of meeting him once. That alone would be a moment of immense pride and fulfillment. However, even today, he lives on in our hearts, in our thoughts, and in our action. His ideas continue to guide us and inspire generations. Be educated, be organized, and be agitated. This powerful message from Baba Sahib Ambedkar continues to guide us even today. Through his writings and teachings, he laid a strong foundation for all of us to serve the society with a purpose and responsibility. As Baba Sahib once said, a great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. With that inspiring thought, let us now move on to the most awaited part of today's celebration. As a tradition, we begin all auspicious occasions with the lighting of ceremonial lamp, offering of garlands to Baba Sahib and Vandana to Tathagat Gautam Buddha. Light is a universal symbol of prosperity, well-being, and abundance. It illuminates our path and helps us to see the things more clearly. Most importantly, it represents knowledge, the light that dispels ignorance, just as brightness removes darkness. Thus, the lighting of lamp signifies the awakening of knowledge and removal of ignorance within us. May I respectfully invite our Honorable Chief Guest, Sanjay Khanna Sir, our esteemed guests of honor, our keynote speaker, Padma Shri Kalpana Saroj Ma'am, and all other dignitaries to kindly come forward and grace the occasion.
हॅलो सामूहिक बुद्धवंदन हवे. नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अद्विन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सुरामेरमज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. साधु साधु साधु. At BPC SC/ST Employees Association, guided by the motto "Giving Back to Society," we actively undertake several impactful initiatives. One such initiative is our participation in Dhamma Chakra Pravartan Din at Nagpur, which witnesses a massive footfall of around 1.2 to 1.5 million devotees. At BPCL stall, we organize women's health and hygiene camp, eye checkups with distribution of reading glasses, school stationery kits for children, and snacks distribution. Another key initiative is Entrepreneurship Development Program, EDP, through which we have trained over 120 candidates via a free 15-day residential program. We also run Super 50, where deserving students receive free coaching for 11 months to prepare for IIT JEE. Last but not the least, through SDI Kochi, we provide free 6 months training program in various technical ITI trades, empowering candidates with employable skills. We have made a AV for same. May we have the AV, please? Some leaders inspire और कुछ leaders history नहीं future लिखते हैं. On the 135th birth anniversary of Dr. बाबा साहब अम्बेडकर, ये सिर्फ याद करने का दिन नहीं, ये उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प है. Educate, agitate, organize. बाबा साहब की ये सोच आज भी हर बदलाव की फाउंडेशन है. इसी सोच से जन्म हुआ BPC SC/ST Employees Association का. एक छोटी सी शुरुआत लेकिन एक बड़ा विजन, समाज को एम्पावर करना. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहां रोजगार सिर्फ मिलता नहीं, क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बाबा साहब का सपना था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर ऑल. सुपर 50 शेपिंग द फ्यूचर, 11 महीने की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए. एजुकेशन, जो बाबा साहब का सबसे बड़ा वेपन था, आज भी वही बदलाव ला रहा है. स्किल डेवलपमेंट एट SDI कोची, 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहां यूथ को मिलती है सेल्फ रिलायंस की पहचान. हेल्थ एंड हाइजीन इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन. रूरल इंडिया में अवेयरनेस, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाबा साहब के विजन में जेंडर इक्वालिटी के बिना समाज अधूरा है. एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की तरफ कदम है. From CSR conclaves to meaningful collaborations, from recognition to stronger impact. ये सफर सिर्फ बढ़ने का नहीं, लोगों को साथ लेकर चलने का है. आज BPC SC/ST Employees Association सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं,
एक मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट जो बाबा साहब के सपनों को रियलिटी में बदल रहा है। ऑन दिस 135th बर्थ एनिवर्सरी, वी डोंट जस्ट रिमेंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वी कंटिन्यू हिज जर्नी। Thank you. Whether it's a joyous celebration, a vibrant festival, or a sacred ceremony, music always plays a vital role in elevating the spirits of occasion, and today's celebration is no exception. It has the power to uplift our spirits, evoke emotions, and create a sense of unity and participation among people. May I request our in-house singer, Mr. Amit Samant, Mr. Ritesh Jadhav, Mr. Satish Sudhir, and Mr. Ramdas Pawar to come on stage and present that tribute to Baba Saheb. जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब की सुनो पुकार, साहेब का सपना है तैयार, शिक्षा की राह पर चमको सितारे, जन जन में बसे यही विचार तुम्हारे, जन जन में बसे यही विचार तुम्हारे। अंधेरों में राहें बिखरी बिखरी, साहिब के ध्यान से निकली है निकली, किताबों से करो तुम यारी, शिक्षा रहेगी हम सबको प्यारी, शिक्षा रहेगी हम सबको प्यारी। हर कदम पर सपने सजाओ, ज्ञान की ज्योति तुम जलाओ, बाबा साहेब का संदेश है निराला, बच्चा बच्चा जाए स्कूल हमारा, बच्चा बच्चा जाए स्कूल हमारा। तालियां बजती रहनी चाहिए। शिक्षा की ज्योति जैसे जलेगी, अंधविश्वास की घटा छटेगी, बाबा साहेब का सपना सजाओ, घर घर ज्ञान की ज्योति जलाओ, घर घर ज्ञान की ज्योति जलाओ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, पढ़ो लिखो एक संग रहो, जाति धर्म की दीवारों को तोड़ो, शिक्षा से बंधन तोड़ो, शिक्षा से बंधन तुम जोड़ो, समान दिलाए, गाँव गाँव शहर शहर पाए, जय भीम भारतवर्ष शिक्षित होगा हमारा, भारतवर्ष शिक्षित होगा हमारा। जय भीम गाँव गूंजेगा नारा, शिक्षा से ज्ञान का सूरज चमकेगा हमारा, बाबा साहेब का सपना पूरा करेंगे, शिक्षित बनेंगे साथ जुड़ेंगे, शिक्षित बनेंगे साथ जुड़ेंगे। जय भीम की सुनो पुकार, बाबा साहेब का सपना है तैयार। धन्यवाद। Thanks for such
such a beautiful performance. बाबा साहेब का संदेश है निराला, बच्चा बच्चा जाए स्कूल हमारा. Listening to such songs not only motivates a person to excel in the life, but also reminds how much privileged we are to live in this era, where we can realize our potentials to full extent without any fear of direct discrimination. This song is an in-house composition and written and composed by Mr. Satish Sudhir, Chief Manager Corporate HSSC. Can we once again have a big round of applause for our performers? Moving ahead with the event, I would now request Honorable Chief Guest Sanjay Khanna sir to please grace the stage and take the seat. May I request Guest of Honor Subhankar Sen sir to please take the seat, and I request Pushpa Kumar Nair sir and Honorable Keynote Speaker Padma Shri Kalpana Saroj ma'am to please take the seat. Moving on to the next part, I would like to invite onto the stage Mr. Manoj Kakade, Head Supply Chain Petchem Task Force and President of BPC SC/ST Employees Association, to felicitate our Honorable Chief Guest Sanjay Khanna sir, Chairman and Managing Director BPCL. Sanjay Khanna sir is a chemical engineering graduate from NIT Tiruchirappalli and holds a postgraduate degree in finance management from University of Mumbai. Sir brings over 3 decades of extensive experience in refinery operations and technical services. Sir has played a pivotal role in setting up new plants and commissioning several units across BPCL refineries, including Mumbai, Kochi, and Numaligarh. Sanjay Khanna sir has held the dual responsibility of Director Refineries along with additional charge of CMD. And we proudly say that he has recently been appointed as the Chairman and Managing Director of BPCL. A visionary leader with deep technical expertise and strategic acumen, he continues to drive excellence and inspire progress across the organization. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Mahesh Kamble, Chief Manager O&M and HSSC Gas HQ, and last one. May I invite our Honorable Chief Guest Sanjay Khanna sir, Chairman and Managing Director BPCL, to felicitate our Honorable Keynote Speaker Padma Shri Kalpana Saroj ma'am. Ma'am is an Indian businesswoman, entrepreneur, a TEDx speaker and chairperson of Kamani Tubes Limited, Mumbai. May I request both the dignitaries to take the seat, please? I would like to invite Mr. Mahesh Kamble again to felicitate our guest of honor, Shubhankar Sen sir, Director Marketing BPCL with additional charge of Director HR. Shubhankar Sen sir joined BPCL in November 1986. Sir's extensive journey at BPCL, spanning multiple roles and geographies, has molded him into a dynamic and effective business leader with rich experience in building strong brands, driving go-to-market strategies, and nurturing high-performing teams. Sir is a professional golfer and represented country internationally. Invite Mr. Ritesh Jadhav, Senior Manager, State Coordination Retail, SLC Maharashtra, and Working President of BPC SC/ST Employee Association, Western Region, to felicitate Pushpa Kumar Nair sir, Executive Director, Corporate HR BPCL and Director HR Designate. Pushpa Kumar Nair sir.
Pushpa Kumar Nair sir began his journey in Bharat Petroleum in 1991 in operations. After 5 years in his role, sir transitioned to sales, where he successfully managed 4 districts of Madhya Pradesh for 3 years. In October 1999, sir took on the role of Head of Department PNG Marketing at Indraprastha Gas Limited based in Noida, where he spent over 4 years driving business planning and execution of PNG business. Sir subsequently progressed to leadership roles and was elevated to the position of Executive Director HRD at BPCL in April 2023 and Director HR Designate from 24th February 2026. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Prashant Mane, Senior Manager Corporate Affairs, to felicitate Parthasarathi D. Sir, Executive Director HRS. Mr. Dada Rao to felicitate Pankaj Kumar Sir, ED Corporate Finance. Mr. Satish Sudhir to felicitate Veena Mansukh ma'am, CGM CSR. Mr. Vinod Kumar Gautam to felicitate Debashish Naik Sir, ED Corporate Affairs. I would like to now invite Mr. Pramod Tembare to felicitate Raman Malik Sir, CGM Brand and PR. Thank you, everyone. Moving ahead with the event,
I would like to invite Mr. Manoj Kakade, Head Supply Chain Petchem Task Force and President of BPC SC/ST Employees Association to share his thoughts, please. Eminent speaker for the evening, Padma Shri Kalpana Saroj ma'am, Honorable Chief Guest for the evening, RC and MD Shri Sanjay Khanna sir, Guest of Honor, Director Marketing with additional charge of Director Personal Shri Shubhankar Sen sir, our own Pushp Kumar sir, ED Corporate Affairs and Designate ED Corporate HR and Designate Director HR, members of association, all the dignitaries, guests, and members of association, members of union, dear friends, good afternoon. It's a great pride and honor to welcome you all for this 135th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, who is a visionary not only for the constitution building, but he championed the cause of women's empowerment long before it became a global movement. Today's occasion becomes even more special and inspiring with the gracious presence of Padma Shri Kalpana Saroj, a true embodiment of Babasaheb's vision, rising from extreme adversity to becoming one of the India's most respected entrepreneur. Her life journey reflects the power of determination, education, and self-belief. She stands as a living example of what empowerment truly means. Empowerment is not just about opportunity. It is about creating an environment where women feel safe, respected, and valued. Dr. Ambedkar firmly believed and stated, "I measure the progress of community by the degree of the progress which women have achieved." Baba Saheb strongly believed, "Shikshit bano, sangatit raho, sangharsh karo." These words are not just slogan, but a lifelong guide for all of us. Taking inspiration from this, BPC SC/ST Association has undertaken simple but powerful vision of giving back to the society, as equally driven by the responsibility and upliftment of the communities and foster inclusive growth. From remote villages to bustling cities, our team is making a difference in the life of youth, creating career opportunities through CSR programs. Through the AV, you have seen some of our activities which have been showcased, and we had an opportunity last month to present this to the Ministry of Tribal Affairs. They have been very appreciative and they came forward and said that they would like to collaborate with us with our SDI Kochi Training Institute, wherein they would like to train around 2,000 youth from the tribal areas, and we have been the partners to them. You have seen the signing ceremony was done last month. So now the association going beyond the boundaries and reaching people out there. Okay, simple activities we have been doing, but as I said, it's giving back to the society. So giving back to the society is not so easy. And whenever we think of association or a union, people think there's a friction between the management and the association. But here I stand saying that when we join hands, we can create wonders. After listening to my presentation at the CSR conclave, there were a lot of many people who wanted to contact us, and one of them was Usha Internationals. Usha International, after the presentation, did meet me, and officially they have sent a mail for collaboration now. They want to collaborate us on women empowerment because they have more than 100 training institutes, the Usha Silai Training Institutes, and they would like BPCL to join hands with them to take this forward and make it global.
And secondly, when I met Khanna sir for the first time to welcome him as a chairman, he was very gratefully, he said, Ki, why don't you make use of our SDI Bina also? So, sir, we are planning the next program at Bina. And it is a great pleasure to tell us that EDP we have been doing in Mumbai only, but first time we will be taking it to North, that is Delhi. So May, the next batch is in May, that is in Delhi. Lastly, I would like to mention that though each act is of service, we reframe our belief that progress is most meaningful when it is including everyone. With these words, with deep respect and admiration, I once again pay my humble tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar, and thank you all for being part of this program. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Kakre sir, for your thoughts. Baba Saheb once said, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. And I feel that to cultivate the mind, it needs seeds and water in the form of positive thoughts and motivation. To provide these thoughts and motivation, I would now like to invite our Honorable Chief Guest, Sanjay Khanna sir, Chairman and Managing Director BPCL, to share his words of wisdom, please. Thank you, Amit. A very good afternoon to all. Shri Shubhankar Sen, Director Marketing, with Additional Charge of Director HR. Shri Pushp Nair, Designated Director HR. आदरणीय उपस्थित मान्यवर और प्रिय साथियों और आज की वेरी स्पेशल गेस्ट्स मिस कल्पना सरोज जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर उन्हें बेहद विनम्र भाव से अभिवादन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल उद्यमी मैडम कल्पना सरोज जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी कहानी संघर्ष और अदम्य साहस की मिसाल है। कल्पना जी ने 2 रुपए की दिहाड़ी से शुरुआत करके 2000 करोड़ रुपए का कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया और ऐसी महान इंस्पिरेशनल शख्सियत का भारत पेट्रोलियम में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा साहब केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संपूर्ण जीवन समानता, न्याय और मानव गरिमा के लिए समर्पित रहा। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और उनका सबसे बड़ा महान योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। उन्होंने संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में बाबा साहब के विचार अत्यंत क्रांतिकारी थे। उनका मानना था की समाजांची प्रगती महिलांच्या प्रगतीवर अवलंबून असते। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक समानता दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाने का उनका प्रयास एक ऐतिहासिक कदम था। देश की आर्थिक नीतियों को दिशा देने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे के आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया था। जल संसाधन, बिजली और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उनके योगदान अत्यंत दूरदर्शी थे। महिला सशक्तिकरण केवल एक विषय ही नहीं बल्कि हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस भावना के साथ आज के कॉरपोरेट और संस्थागत जीवन में हमें बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करना होगा। मैं यहाँ उपस्थित SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करके बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि जो उन्होंने SGI के माध्यम से युवक और युवतियों को एक एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की दिशा में काम किया। सुपर 50 के माध्यम से बच्चों को एक बहुत उच्च आने वाले अवसरों को प्रदान किया और EDP प्रोग्राम जो अरेंज किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रोग्राम और तेजी से आने वाले वर्ष में आगे बढ़े। अंत में मैं बाबा साहब को नमन करते हुए यही कहना चाहूँगा, त्यांचे जीवन आपल्यासाठी प्रेरणा आहे, त्यांचा संघर्ष आपल्या शक्ती आहे आणि त्यांचे संविधान आपले मार्गदर्शक आहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable insight and thoughts and your words of encouragement. Thank you. Your speech will always remain in our heart, especially the Marathi lines, sir. Thank you. Can we have a big round of applause once again? जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। It's now time for the highlight of our program, for which we all were eagerly waiting for. Before I invite our keynote speaker, I would like to briefly share her journey of a woman who turned every obstacle into stepping stone. Padma Shri Kalpana Saroj ma'am is a renowned Indian businesswoman, entrepreneur, and a TEDx speaker. She serves as a chairperson of Kamani Tubes, Mumbai, and a leading manufacturer of copper and copper alloy products. Born into humble beginnings in Dalit community, she is widely admired for her remarkable journey, transforming adversity into opportunity. She successfully revived the distressed Kamani Tubes and steered it back to profitability, becoming a symbol of resilience and determination. In recognition of her outstanding contribution to trade and industry, Kalpana Saroj ma'am was conferred the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor in 2013. She was born in 1961 in Ruparkheda, Akola, in Marathi Buddhist family. As the eldest among 5 siblings, her father served as police constable in the region. Starting from a very modest background, she began working in a garment factory at a very young age to support her family, earning a minimal income with determination and the support of government scheme for scheduled caste. She went on to establish a tailoring business, followed by a furniture venture, laying the foundation for her remarkable entrepreneurial journey. Kalpana Saroj ma'am built a successful real estate business and became widely known for her entrepreneurial acumen and strong business network. She was on the board of Kamani Tubes when it went into liquidation in 2001. Taking on the challenge, she acquired the distressed company, restructured its operation, and successfully brought it to profitability. Expanding her entrepreneur journey, further, she ventured into film productions through KS Film Productions and produced the Marathi film Kherlanjicha Mathavar, which was later dubbed in English, Telugu, and Hindi. She has also served on board of directors of Bharatiya Mahila Bank, appointed by Government of India, and is a member of Board of Governors at Indian Institute of Management, Bangalore. Her inspiring journey has been featured in Dalit Millennials, 15 Inspiring Stories, and she has been distinguished speaker at TEDx platform. A recipient of Padma Shri in 2013, her life stands a powerful example of resilience, determination, and transformative power of entrepreneurship. Can we all have a huge round of applause for Padma Shri Kalpana Saroj ma'am? I invite you on dais, please. तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर,
महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनकी प्रतिमाओं को अभिवादन करते हुए आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय मुख्य अतिथि श्री संजय खन्ना जी, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, माननीय अतिथि श्री BR के गुप्ता जी, डायरेक्टर, श्री शुभंकर सेन जी, डायरेक्टर, श्री पुष्प कुमार नायर जी तथा उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के समारोह के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और जय भीम। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी प्रगति कर चुकी है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह हमें आज भी प्रेरणा देता है। समान अधिकार, शिक्षा का महत्व, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान। आज मैं जिस विषय पर अपना विचार साझा करने जा रही हूँ, महिला सशक्तिकरण, वह मेरे लिए केवल एक विषय नहीं है बल्कि मेरे जीवन का अनुभव है, मेरा संघर्ष है और मेरी पहचान है। मेरा जीवन और बाबा साहब की सीख। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पे आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों की वजह से आज मैं जो भी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। अगर बाबा साहब ना होते, उनको विचार ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होती। कहीं पता नहीं, कहीं देहातों में, कहीं खेतों में काम कर रही होती या पता नहीं किसी के यहाँ बर्तन घस रही होती। क्योंकि जहाँ से मैं चली थी वहाँ पर मेरे बाबा एक पुलिस हवलदार थे, सादे, और उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना मतलब सही नहीं समझा जाता था कि लड़की पढ़ लिख कर करेगी क्या, चूल्हा और चौकी के सिवा है क्या। तो जितनी जल्दी उसकी शादी कर दी जाए उतना ही ठीक है, ये सोच थी उस मतलब समाज की। तो मेरे घर के लोग भी बस उसी सोच में लगे हुए थे कि मैं तो मतलब 5वीं 6वीं में पढ़ रही थी तभी से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे मामा जी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी शादी करा दो, लेकिन मेरे बाबा पुलिस में थे तो थोड़ा समझते थे, कहते थे कि नहीं, इसको मैट्रिक तक पढ़ाते हैं उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन मामा नहीं माने और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मेरी शादी करवा दी। बदनसीबी रही कि शादी भी ठीक नहीं रही और 6 महीने में ही मेरे बाबा थोड़े क्रांतिकारी विचारों के थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी यूं ही घुट घुट कर मरे। और मेरे बाबा मुझे वापस ले आए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम पढ़ना चाहती थी, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। लेकिन उस वक्त की जो व्यवस्था थी उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। लोग तो खैर कह ही रहे थे, समाज के लोग तो खैर कह ही रहे, लेकिन मेरे अपने घर के, मेरी दादी, नानी, चाची जो भी है रिश्ते में, वो सब मेरे बाबा को कोस रहे थे कि महादेव तू काय वेडा बिडा झालास की काय रे, घेऊन आलास पोरीला, तर काय तुझी पोरगी काय मेली असते की काय। अरे आम्ही मतलब खूप सासूरवास भोगलेला आहे आणि भोगावं लागतं मुलगी म्हटलं की। तो मेरी माँ बाबा दिन रात इन सारी बातों को सुन रहे थे और ये सारी बातें मेरे दिल पे असर कर रही थी कि ये क्या हो रहा था। वहाँ तो था ही नर्क भरा जीवन, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद भी मेरी वजह से मेरी माँ बाप को सहना पड़ रहा है ये सारा कुछ, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं जी के क्या कर रही हूँ वैसे, मतलब बोझ ही तो हूँ मैं धरती पे, अपने माँ बाप के लिए भी मैं बोझ बन चुकी हूँ, तो मुझे मर जाना चाहिए। और मैंने इस तरह से सोचा और मैंने पॉइजन पी लिया कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की ज़िंदगी। लेकिन मेरे बाबा ने फिर भी मुझे बचा लिया। बच तो गई, फिर लोग देखने के लिए आने लगे और फिर वही ताने, हे पोरी काय केलंस तू, मेली असती तर लोकांनी काय म्हटलं असतं। लोक तर हेच म्हटले असते ना की महादेवच्या पोरीने नक्कीच असं काहीतरी केलं असेल ज्याच्यामुळे ही मेली। तो ये जो शब्द थे ये दिल की गहराई तक चुभ गए मेरे, कि लोग ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, तब फिर क्या करें। जीना तो होगा, तो अगर कुछ करके मरना ये लोग सोच रहे हैं तो कुछ करके जी लेंगे। उसी वक्त मैंने ठान लिया, मतलब मैंने सोच लिया कि आज के बाद मरने की कोई बात नहीं सोचनी है, मुझे जीना है, कुछ भी करके जीना है। बात तो सोच लिया कि मैंने जीना है, पर कैसे, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। और मैंने कोशिशें की
मैं कुछ काम करूं। क्या काम करूंगी? मैं तो 10वीं पास भी नहीं हूं। पढ़ाई बाबा करना चाहते थे लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करूंगी? खेतों में मैं काम कर नहीं सकती थी। मैंने नौकरी की कोशिश की लेकिन नौकरी हो नहीं सकती थी। इसी बीच मैंने सोचा कि चलो मैं सिलाई ही सीख लेती हूँ। एटलीस्ट मैं एक ब्लाउज़ सिलूंगी तो 10 रुपये होता था उस ज़माने में, तो 2-3 ब्लाउज सिलाऊंगी तो 30-40 रुपये मिल ही जाएंगे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये बिज़नेस वाला सोच इस तरह से आ गया था और मैंने सिलाई सीख ली। पर बदनसीबी ऐसी थी कि वहाँ पर भी कोई ब्लाउज़ मेरे पास इतना नहीं आ रहा था जितना कि मैंने सोचा था, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि लोग पूरे कपड़े फटने तक, जब तक उसको पाबंद नहीं लगाएगा तब तक कपड़े पहन लेते थे। तो नए कपड़े आएंगे कहाँ से और मैं सिलूंगी कहाँ से? फिर वही सवाल आया कि क्या करूँगी मैं। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं मुंबई जाऊँगी, वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, मैं वहाँ कुछ काम कर लूँगी और अपने बलबूते पे जीऊँगी। पर एक जवान लड़की को मुंबई भेजेंगे कैसे? ये एक बड़ा सा सवाल। बोले तेरी बाबा नहीं भेजेंगे, बाबा पुलिस में थे, प्यार करते थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी उतने ही थे, तो नहीं भेजेंगे। मैंने कहा अगर तुम नहीं भेजोगे तो अभी तो मैंने पॉइजन पिया था, लेकिन अगर नहीं भेजोगे तो मैं ट्रेन के नीचे सीधा सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीना है। माँ ने कहा ये लड़की मतलब पागल हो गई है, इसको भेज दो, क्योंकि जहाँ भी रहेगी जिंदा तो रहेगी। और फिर घर के फैमिली ने सबने मन बनाया और मुझे मुंबई भेजा गया। मुंबई में मैं आई लेकिन यहाँ मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। एक गुजराती फैमिली के घर में मैं करीबन 2-2.5 साल रही। मुझे इतनी दिक्कतें हुई क्योंकि मैं सिलाई जानती थी, उन्होंने मुझे लोअर परेल में होजरी कंपनी में लगाया था, लेकिन ट्रेन में मैंने देखा नहीं था लोकल कैसी होती है, ट्रेन कैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े रोड मुंबई के कैसे होते हैं। मैं तो छोटे से गांव से आई थी, 1 साल सीधा साधा रास्ता, जो बाजार भी वही जाता, स्कूल भी वही जाता, हर जगह पे वो एक ही रास्ता देखा। और यहाँ इतने बड़े बड़े रास्ते जिस पे कहाँ कहीं गुम ना हो जाऊँ, ये डर भी दिल दिमाग में था। कहीं बार मैं ट्रेन से गिरी होंगी, कहीं बार औरतों ने मुझे मतलब पैरों के नीचे कुचला होगा, कहीं बार 60 पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं कुर्ला से चेंबूर तक पैदल जाती थी, पैसे नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से ज़िंदगी चल ही रही थी कि मेरे बाबा की नौकरी गई किसी कारणवश, और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैंने सोचा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ बाबा की। और बाबा के पास तो वही पुलिस क्वार्टर था। नौकरी जाने के बाद में मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, तो जाने के बाद में बाबा के, तो फिर हमारी फैमिली रहेगी कहाँ? तो मैंने सबको कहा कि आप मुंबई आ जाओ, हम लोग यहाँ पर मतलब रह लेंगे, कैसे भी छोटा मोटा काम करके जी लेंगे। और मैं सबको यहाँ ले आई, जब मेरी 2 बहनें, भाई, माँ, बाबा। तो मुंबई में यहाँ पे कोई घर लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस गुजराती की फैमिली के पास में जो मैं काम करती थी, वो गुजराती फैमिली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मेरे सारे पैसे इकट्ठा करके रखे थे। मेरा पगार जो आता था मैं उनके पास देती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम बेटियों से लेते नहीं, हम बेटियों को देते हैं बेटा, हम नहीं लेंगे तुम्हारे पैसे। तो काफ़ी अच्छे से पैसे मेरे जमा हो गए थे। मैंने कल्याण में जाके 40 रुपये भाड़ा और 400 रुपये डिपॉजिट का चाल में घर ले लिया और अपने परिवार के साथ में वहाँ रहने लगी। कहीं दिन हमें भूखा पैसा रहना पड़ता था, क्योंकि 200-250 पगार तक मैं पहुंच चुकी थी। खैर, लेकिन इतने पगार में इतना बड़ा परिवार चलाना, फिर मेरा पास है, घर का भाड़ा है, तो बड़ी दिक्कतें थी। लेकिन फिर भी हम खुश थे कि चलो हम अपने बलबूते पे जी रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं। पर इसी बीच मेरी बहन बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि उसके 2000 रुपये सिर्फ उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा था, और मैं नहीं दे पाती थी। कहाँ से दूंगी? यहाँ पेट नहीं भर पा रहा था, तो 2000 जमा भी कहाँ से होंगे और कहाँ से मैं दूंगी? और मेरी बहन देखते ही देखते मर गई। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, जीने का सपना, और वो मुझे कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। पर दीदी इतनी बदनसीब थी कि वो उसको बचा नहीं पाई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये बात ने मुझे ये बताया कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम हमारे अपनों को भी हम बचा नहीं सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि आज ये बहन चली गई, कल दूसरी बहन है, मेरे माँ है, मेरे बाबा है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर इनको भी कल कुछ हो जाता है और मैं इनको नहीं बचा पाऊंगी तो फिर मेरे जीने का मतलब क्या है? तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम होते हैं जहाँ से हम लोन ले सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। मैंने 50,000 का लोन लिया। 50,000 का लोन लिया, ये सोच के लिया कि मुझे सिलाई आती है, मैं मशीनें डालूंगी, मैं चला लूँगी। लेकिन इतना नहीं था उस ज़माने भी, पर फिर भी ठीक है, मैंने
मशीनें डाली, अपना काम चलता रहा। उसी के साथ साथ मैं कुछ फर्नीचर का भी काम करने लगी, क्योंकि सिलाई से इतना ठीक नहीं चल रहा था। पर मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे यूथ हमारे ऐसे थे जिनके पास में रोजगार नहीं था, नौकरियां नहीं थी, और सरकार के पास इतनी नौकरियां भी नहीं थी कि वो यूथ को दे सके। तो बहुत सारे यूथ फिर ऐसे ही मतलब आवारागर्दी करना या कुछ करना, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं तो करेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मुझे लोन मिला, मैंने लोन लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू की, तो इस बच्चों के लिए क्यों ना करूं। और वहाँ से मेरा सोशल वर्क शुरू हो गया एक्चुअली। और मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाई, और उस संगठन के द्वारा उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया। उन प्लेटफॉर्म में बैंक के अधिकारी होंगे, स्कीम के अधिकारी होंगे, या फिर कोई चीफ गेस्ट बुलाना हो, उनको बुलाया। और फिर वहीं के वहीं बैंक वाले और स्कीम वाले उन बच्चों को स्कीम समझाते थे, उनके फॉर्म भरते थे, और इसी तरह से मतलब उनको लोन देने का सिलसिला शुरू हुआ, उनको अपने पैरों पे खड़े करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस तरह से माउथ टू माउथ मेरा बहुत ऐसा नाम होने लगा कि अरे ये जो लेडी है बहुत अच्छा, क्योंकि उनके घर के चूल्हे जलने लगे, उनके बच्चे जो आवारागर्दी करते थे वो एक लाइन पे आने लगे। तो इस तरह से मेरा काम, एक तरफ मेरा काम चल रहा था, दूसरी तरफ जो है मेरा सोशल वर्क चल रहा था। तो ये करते करते ही एक टाइम है ना, मैं कितना बोल सकती हूँ, क्योंकि तो लोग जो है वो मेरे पास अपने काम लेकर चले आते थे। तो कल्याण में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में बहुत सारे लिटिगेशन थे। तो वो लिटिगेशन लेकर वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मैडम मुझे ना 2 लाख की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये मेरा प्लॉट है, आप ये ले लो। तो मैंने कहा मेरे पास 2 लाख तो है नहीं है, लेकिन हाँ मैं 1 लाख रुपए कहीं से भी करके देती हूँ। तो मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, और उसने उस प्लॉट के पेपर्स मुझे दे दिए। उस प्लॉट के पेपर मुझे देने के बाद में पता ये चला कि उसके ऊपर सीलिंग एक्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर कुल लगा हुआ है, और ज़मीन किसी काम की तो है नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में मैं डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ऐसे लोगों को हम बुलाते थे, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। तो मेरी पहचान अच्छी हो गई थी, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा ताई हे काही कामाचे नाही आहेत पेपर, याच्यावर तर एवढं सगळं आहे। म्हटलं साहेब असं काही बोलू नका, कामाचे नाहीत म्हणून, पण तुम्ही मला सांगा याच्यामध्ये काय करता येईल आणि काय केल्याने हे होईल। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो पहले सेल परमिशन लेनी होगी कलेक्टर से, सीलिंग एक्ट निकालना होगा, तब ये ज़मीन जाके क्लियर होगी और तब तुम कुछ कर सकोगी। तो ये सारा कुछ करने के लिए करीबन 2-2.5 साल मुझे लगे। लेकिन हाँ, मैंने उस ज़मीन से सीलिंग एक्ट भी निकाला और मैंने कुल भी निकाल दिया। जो ज़मीन 2 लाख की थी वो ज़मीन क्लियर होने के बाद में करीबन 50 लाख की हो गई। तो ये मेरी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी थी जो मैं मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई कि 50 लाख की ज़मीन मेरे पास में है। फिर ये ज़मीन का मैं करूँगी क्या? फिर क्वेश्चन मार्क था कि मैं क्या करूँगी इसका। तो लोगों ने कहा बिल्डिंग बना लो। मैंने कहा बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे तो है नहीं मेरे पास। फिर मैंने किसी को पार्टनर ले लिया और फिर 35% मेरा, 65% उसका, और इस तरह से हमने बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन अब लोग बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, पुरुष प्रधान देश में एक स्त्री अगर कुछ करती है तो, और वो भी बिल्डर, और मतलब आज से करीबन 90 का आसपास का ज़माना, उससे भी पहले का 97 वगैरह का ज़माना, उस ज़माने में एक औरत आके यहाँ पर बिल्डर बनेगी, तो ये तो हजम ही नहीं हो रही थी बात। तो लोगों ने मतलब वहाँ के जो लोकल कुछ गुंडास थे उन्होंने कहा कि बहुत डराया धमकाया, मैं डरी नहीं, बाबा साहब की औलाद थी, ना डरूंगी कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको मार ही देना चाहिए क्योंकि ये ऐसे डरने वाली नहीं। तो मेरी सुपारी दी गई उस वक्त 5 लाख रुपए की, और कहा कि ये इसको किस तरह से मारना है वगैरह, इस तरह से किया। और उन लोगों ने, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में ये पैसे पहुँच जाएंगे और तुम अपना ये पैसा लेके मतलब तुम इसको मार के तुम नेपाल निकल जाना ताकि पुलिस पकड़ ना पाए। तो वहाँ बैठा एक शख्स ऐसा था जिसके घर में मैंने लोन वगैरह दिया था, उसका बच्चा अच्छा भला काम कर रहा था। तो उसको ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि ये लेडीज़ कुछ तो नहीं कर रही है, तो बेचारा अपना काम अच्छे से कर रही है, फिर इसको क्यों मारना चाहते हैं ये लोग। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मतलब उनकी मीटिंग खत्म हुई, वो आदमी मेरे घर आया, उसने कहा की ताई तुम्ही इथून ताबडतोब निघून जा तुमच्या गावाला। म्हटलं का बरं? नाही तुम्ही जा इथून, कारण जी लोक आहेत ना ते खूप खतरनाक आहेत, आमचे हात पोळलेले आहेत। अरे म्हटलं असं काय सांगताय तुम्ही, मला सांगा तरी नेमकं काय आहे, काय झालंय काय। तो उसने मुझे धीरे से बताया कि ये बातें हैं और आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। तो
मुझे बताएगा कोई कि अगर किसी के नाम की सुपारी दी गई हो, उसके मारने की धमकी मतलब आ रही हो, तो कोई अपने गांव निकल जाएगा वाकई या उसका सामना करेगा? मैंने सामना किया। क्यों? कि बाबा साहब ने हमें सिखाया हुआ था कि अपने हक के लिए अपने को लड़ना होगा। अगर हक मांगने से नहीं मिलता होगा तो छीनना होगा। तो ये बातें जो थी वो दिल दिमाग में थी। मैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास गई, क्योंकि मैं कल्याण रहती थी, मैं ठाना गई। पुलिस कमिश्नर वहाँ के भुजंगराव मोहिते थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई मारने वाला है। तो उन्हें भी बड़ी हंसी आई कि तुम्हें मारने वाला है और तुम्हें पता भी चला। मैंने कहा सर पता तो चला, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती उसका, आप ढूंढ लीजिए ना, आप पुलिस है। तो उन्होंने कल्याण के डीसीपी, एसीपी और कल्याण मतलब कुलसावाड़ी पुलिस स्टेशन, तो पता चला कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह से मतलब ये लोग इस तरह से काम करते हैं। तो पुलिस ने अपना काम किया और इन्होंने मुझे, कमिश्नर ने दूसरे दिन बुलाया और कहा कि देखो तुम एक काम करो कि तुम सिक्योरिटी रखो अपने साथ में, क्योंकि तुम बिजनेस में आई हो, आज तुम्हें पता है कि तुम्हें मारने वाला है कोई, लेकिन कल शायद पता ना हो कि कोई तुम्हें मार भी देगा और तुम यूं ही मतलब चली जाओगी दुनिया से। उससे बेटर है कि तुम अपने लिए सिक्योरिटी लो। मैंने कहा सर सिक्योरिटी लेकर क्या करूँगी, देना है तो रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दीजिए मुझे। तो कहा तुम रिवॉल्वर चलाओगी? मैंने कहा सर वैसे हम बुद्ध के पाइक है, हम तो चींटी भी ना मारे, लेकिन हाँ अगर कोई हमारे ऊपर मारने के लिए आए तो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव पे गोली तो चला ही सकते हैं। और साहब ने कहा कि ठीक है तुम दूसरे मतलब कल आ जाओ 11 बजे। और मैं दूसरे दिन 11 बजे गई। आप यकीन नहीं मानोगे, 11 बजे से लेके 6 बजे तक मुझे बिठाया गया और जितने भी टेबल थे वो सारे एक साथ होके एक ही दिन में मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला। 99 की ये बात है, एक ही दिन में रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला। मेरी हिम्मत और बढ़ गई, मैं काम करने के लिए और मतलब शेरनी की तरह आगे आ गई। बाबा साहब के विचार तो थे ही थे हमारे साथ। बाबा ने कहा ही था कि भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जियो। ये सारे विचार हमारे अंदर थे ही थे। और इसलिए फिर जब से रिवॉल्वर आ गया तो और अंदर से ताकत आ गई कि अब कौन माई कलाल आता है मारने के लिए, देखते हैं। ओके, और मैं अपना काम करती रही, काम इसी तरह से करती रही, माउथ टू माउथ मेरी बातें होती रही। और इसी तरह से कमानी के लोग मेरे पास आए और उन्होंने बताया, कमानी के बारे में आप लोगों को सबको मालूम होगा क्योंकि रोड के उस पार ही कमानी है, कमानी चेम्बर्स, जहाँ पे अपनी 2 बिल्डिंग है, जहाँ जिस लड़की को गाँव से आई थी उसको रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज उसके नाम से, उसके कंपनी के नाम से 2 रोड है, कुर्ला कमानी, रामजी भाई कमानी। यहाँ पर 2 बिल्डिंगें हैं जो अंग्रेज के ज़माने की बिल्डिंग है। एक हमारी ये साहब आए थे, नाम अभी मैं भूल रही हूँ, तो इन्होंने देखा है। तो खैर इस तरह की मेरी एक बिल्डिंग है और दूसरी एक पीछे बिल्डिंग है जिसमें सारे सेमी गवर्नमेंट के लोग थे। जब कंपनी मैंने टेक ओवर करने के लिए मैं आई थी, सारे सेमी गवर्नमेंट के लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की, वो सारी बिल्डिंगें मैंने खाली करके ली। और ये बड़ा लंबा चौड़ा मैंने कैसे किया, क्या किया, इसमें अगर मैं बोलने जाऊँगी तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और मेरे ख्याल से आप लोग सारे बोर हो जाओगे। उससे अच्छा है कि मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं जब वर्कर मेरे पास आए तो इस कंपनी के ऊपर इससे 16 करोड़ का कर्जा था, 140 लिटिगेशन के केसेस थे और 2 बड़ी यूनियन थी, एक यूनियन जो लाल बावटा वाली थी और एक यूनियन जो वर्कर्स ने खुद अपनी बनाई हुई थी। और ये कंपनी जो है ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मालिक को कंपनी से बाहर किया और वर्कर को कंपनी का मालिक बना दिया। ये हमारी देश की पहला ऐसा निर्णय है। लेकिन हुआ क्या, वर्कर है, मैनेजमेंट था नहीं, वो कंपनी बराबर से चला नहीं पाए, उन्होंने बहुत सारा कर्ज कर लिया, बहुत सारे मतलब लिटिगेशन के केसेस हो गए। फिर अंदर ही के वर्कर जो है उन्होंने यूनियन कर लिया, क्योंकि ये जो यूनियन है ये तो हमें कोई न्याय दे नहीं पा रही है, तो करेंगे क्या। और फिर 87 में ये सारा निर्णय हुआ था कोर्ट का। 87 से 97 तक वर्करों ने कंपनी किसी तरह से चलाई और फिर जब कोर्ट को ध्यान में आया कि वर्कर जो है ये डिफ़ॉल्टर हो गया, जब वर्कर डिफ़ॉल्टर हो गया तो फिर नया कोई प्रमोटर आए और उसको टेक ओवर करे, ये सारा मतलब होने लगा। तो जिसमें से कमानी इंजीनियरिंग जो थी वो हर्ष गोयंका जी ने टेक ओवर कर ली, कमानी मेटल्स जो थी वो हाई कोर्ट के थ्रू नीला हो गई और कमानी ट्यूब जो थी वो हमने टेक ओवर कर ली।
2000 में मेरे पास वर्कर आए थे। 2000 से लेकर 2006 तक कोर्ट में मैटर चलते रहे, ये सारे लिटिगेशन को दूर करते रहे हम लोग। और बहुत खुशी की बात है कि 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी हमें दे दी। अब कोर्ट ने कंपनी तो दे दी, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे। 2011 तक ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है। 116 करोड़ का कर्जा, 140 लिटिगेशन के केसेस और यूनियन, ये मतलब जितने भी सारी लिटिगेशंस थे उसको दूर करना है आपको। 2011 तक आपने किया तो ओके, नहीं किया तो कोर्ट फिर से कंपनी वापस ले लेंगी। और फिर हमारी मतलब पहले भी तारावरची कसरत होती आणि त्याच्यानंतर तर आणखीन डबल झाली। कारण कुर्ला में कंपनी थी तो सारे पार्ट सारे चोरी हो गए थे, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई था ही नहीं। इसलिए वहाँ से हम लोग अपनी कंपनी को बाड़ा लेकर गए। बड़ी मुश्किल से हमने वो पार्ट जोड़े, किस तरह से हमने कंपनी, और हमने 2006 से वहाँ ले गए। 2009 में हमने कंपनी स्टार्ट की और 2011 में आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैंने कंपनी को सारे लिटिगेशन से बाहर निकाल के 140 लिटिगेशन के केसेस में जीती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक केस नहीं जीत पाता है कोई, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है, लेकिन एक केस जीतने के लिए। लेकिन मेरे यहाँ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक सारे मैटर्स थे। और मेरे ऊपर कुछ कृपा रही होगी शायद, और मैं केसेस भी जीती। मैंने जो 116 करोड़ का कर्जा था वो मैंने माफ़ करवाया आधा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को जाकर मिली, बैंकिंग, उनसे कहा कि मुझे मतलब ये जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देंगे अगर, तो उसका आधा हो जाएगा। और मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर दी गई। बैंकों ने मेरे साथ OTS किया, लेकिन उन्होंने OTS इस किया कि मुझे 1 साल में आप अगर पैसा दोगे तो हम आपके साथ OTS करते हैं। तो मेरे साथ मेरे जो डायरेक्टर बने हुए थे वो कहते हैं कि अरे 1 साल में कहाँ से पैसे देंगे इतने सारे, मना कर दो। मैंने कहा नहीं, हमारे पास 1 साल है, 1 साल में हम कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम मौका तो है। नहीं तो आज हम नहीं ना कहते हैं तो आज ही मौका चला जाता है, तो हम उनको हाँ कहेंगे। और हमने हाँ कह दिया, हमारा OTS हो गया। और ऊपर वाली की ऐसी कुछ दया हो गई कि मैंने वो बराबर 1 साल में ही बैंक के पैसे दिए, जिन्होंने बैंक ने हमको 25 प्रिंसिपल से भी 25% बैंक ने हमें माफ़ कर दिया। और इस तरह से मतलब मैं जो आज आपके सामने खड़ी हूँ, कमानी ट्यूब्स की कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं। और मुझे पद्मश्री इसी कंपनी की वजह से 2013 में मिला, नारी शक्ति मुझे 2018 में मिला, और 2 डॉक्टरेट मिले हैं, 1 डिलीट मिला है, इक्कमा देवी क्या वो यूनिवर्सिटी का नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर, तो वहाँ से मुझे डिलीट भी मिला। मैं भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर रह चुकी हूँ। मैं आज भी बेंगलोर इसमें मैं गवर्नर बॉडी पे हूँ। तो मैं बहुत कुछ हूँ, कैसी हूँ मैं खुद भी नहीं जानती। मुझे खुद भी ताज्जुब होता है जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी देखती हूँ कि इसी मुंबई में मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैं कहीं और रह रही थी, किसी गुजराती फैमिली के घर रही थी। लेकिन आज मेरे पास इतने घर है कि मैं कौन से घर में रहूँ, मतलब नहीं समझ में आता है। तो ये सारा मेहनत का नतीजा है, बाबा साहब के विचारों का नतीजा है। और मैंने उन विचारों को बहुत अंदर की गहराई तक उसको, क्योंकि बाबा साहब, जब भी मुझे तकलीफ होती थी मैं बाबा साहब के बारे में सोचती थी, उनकी तकलीफों के बारे में सोचती थी, तो मुझे अपनी तकलीफें उनके सामने कुछ भी नज़र नहीं आती थी कि कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने जो जिया है हमारे लिए, तो वही सपनों को, मतलब उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने वो सारी मेहनत की और काफ़ी सारी तकलीफें हुई, लेकिन मैं किसी तकलीफ को डरी नहीं। यहाँ तक कि जानलेवा तकलीफें हुई उसको नहीं डरी मैं, तो और किसी तकलीफ को क्या डरती। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, आपके सामने बात कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, मेरी 2 बातें सुन ली, तो उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, ma'am, for those valuable insights about Baba Saheb. Can we have a big round of applause for ma'am? With this, we are almost end to the program, and we have a last felicitation for the unions.
May I request Mr. Manik Sonawane to felicitate Mr. Vijay Bele, President MRSC/ST Association. Now I would like to invite Mr. Hemant Kadam to felicitate Pradeep Darekar, Secretary Miller Cooperative Society. Request Mr. Baguji Kirve to felicitate Mr. Kishore Kamble, Treasurer Bharat Petroleum Karmachari Union. May I invite Ramdas Kadam ji. Lastly, I would like to invite Mr. Ramesh Jagtap to felicitate Mr. Arvind Mahadik, Sir Chitnis Bharat Petroleum, Sthaniya Lokadhikar Samiti. I would like to invite Mr. Mahesh Kamble and member, Chief Manager O&M HSSC Gas HQ and member BPCA SC/ST Association to give his vote of thanks, please. Mahesh. Thank you, Amit. Okay. Respected Chief Guest, Chairman and Managing Director Sri Sanjay Khanna Sir, Keynote Speaker Padma Shri Saroj Madam, esteemed dignitaries on the dais, and ladies and gentlemen. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion of celebrating the 135th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. On behalf of the organizing committee, I extend our heartfelt gratitude to our chief guest, the C&MD Shri Sanjay Khanna Sir, for gracing this event with your esteemed presence. Your leadership and commitment to excellence continue to inspire us, sir. Your participation has truly elevated the occasion. We are deeply honored by the presence of our keynote speaker, Padma Shri, Ms. Kalpana Saroj Ma'am. Your insightful address has enriched our understanding of Dr. Ambedkar's vision and reminded us of the enduring relevance of his ideals in today's society. Thank you for sharing your insightful, ma'am. Thank you very much. I would like to express sincere thanks to our distinguished guest, our beloved Director Marketing and Designate Director with additional charge of Director HR, Shri Shubhankar Sen Sir, Shri Pushpa Nair Sir, Designate Director HR, ED HRD
Shri Parthasarathi sir, and all the distinguished dignitaries who have taken time out of your busy schedule and join us today. Your presence has added immense value to this occasion. A special note of appreciation goes to all the organizers, all my colleagues from BPCL SC/ST Association, the volunteers, the support staff, whose tireless efforts behind the scenes made this event a grand success. Your dedication and teamwork are truly commendable. As we conclude this celebration, let us carry forward the ideals of equality, justice, and empowerment that Dr. Ambedkar stood for and strive to implement them in our daily lives. Once again, thank you for being part of this meaningful event. Jai Bhim, thank you. May I request all to please get ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय